dreams are big and determination is at the highest, आपको कोई नहीं रोक सकता है अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए। हमारे साथ आज एक ऐसी पर्सनालिटी बैठी है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में सीए जैसे टफेस्ट कोर्स को एक अटेम्प्ट में क्लियर किया। उन्होंने क्लास 11th कॉमर्स चूज किया, उन्होंने क्लास अपना स्कूलिंग किया एमजीएम स्कूल से, एंड देन शी चोज हर करियर टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अनमोल, सो अनमोल, हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm good, thank you. So currently आप कहाँ काम कर रही हैं अनमोल? Currently मैं पुणे में Deloitte Haskins and Sells जो one of the big four है, जैसा कि सबको पता है, वहाँ पे as a assistant manager audit department में काम कर रही हूँ। Okay. Deloitte एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम सबने सुना हुआ है। So from your journey beginning from भिलाई to Deloitte जैसी बड़ी कंपनी, आप कैसे समराइज करना चाहोगे? So like चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जैसे कि 3 बिग फेजेस होते हैं, फाउंडेशन, देन इंटर, देन फाइनल। तो फाउंडेशन और इंटर तो मैंने एबीएस भिलाई से कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर मैंने आर्टिकलशिप भी यहीं दुर्ग से लिखवानी जी के यहाँ से कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने फाइनल की पूरी क्लासेस भी भिलाई से, मतलब ये वर्चुअल क्लासेस हमको ऑप्शन अवेलेबल था, तो मैंने वहीं से सारी क्लासेस ली। उसके बाद एग्जाम्स अपीयर किए, और फिर वन अटेम्प्ट में आई गॉट क्लियर, एंड देन आफ्टर दैट मैंने बैंगलोर में एक मिड साइज सीए फर्म ज्वाइन की, जहाँ मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और स्टार्ट ऑडिट में। उसके बाद फिर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली डिलॉइट में काम करने की, सो आई मूव टू पुणे एंड presently I'm working there. Okay. So choosing commerce as a stream in class 11th, क्योंकि अगर हम देखें mentality generally, I'm not categorizing anybody, but generally ऐसा होता है कि students commerce को first preference नहीं देते हैं, and you being such a bright student, such an intelligent kid from your time, आपने commerce, what motivated you to choose commerce? So like जब 11th में सब्जेक्ट लेने की बारी आती है, तब everybody gets confused what to do, what to not, what to opt for, like how do you look into like what career you want to be part of. So तब फिर ऐसा था कि मैंने देखा, मतलब ऐसा you get to know this person is doing that, and like friends or relatives. So I got to know about chartered accountancy course and I really loved it. So I wanted to be a chartered accountant. And at that moment only I decided, and I told my family that yes, I want to pursue this as my career. So like when I had decided, then it was not of any reason to opt for any other subjects, because chartered accountancy you need to learn on accounts and other things. So I opted for commerce as an aspirant for pursuing chartered accountancy course. Okay. So was anybody your ideal, मतलब किसी को देख के सोचा कि नहीं अब मेरे को ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ये आज के डेट पे इतना सक्सेसफुल है? Yes, so like लेखवानी सर जिनके घर पे, जिनके पास मैंने आर्टिकलशिप की, उनके सन, उन्होंने भी सीए चूज कर लिया पहले से। एक्चुअली वी न्यू इट बिकॉज लाइक वी आर नेबर्स, सो वी गेट टू नो दैट कि हाँ ये क्या करने का प्लान है फर्दर। सो उनको देख के और उनके फादर को देख के, उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस, इतना अच्छा काम, that was really tempting, or you can say it was really nice to see that I wanted to be like him. So I thought of doing that course. Okay, okay. So currently that you are a very successful CA and working with such a big firm, आपको अगर आपको मैं पूछूं कि how was your life before becoming a CA and after becoming a CA, क्या difference है? It's entirely different. You feel confident, you feel independent. Once you achieve what you dream of, you feel like you are at the top of the world, you can say. And working in such a great organization, it's really exciting, and I get happy every time I tell someone that like I am part of that institution, and I see that what people feel about you. It's really a great experience every time. Okay. So what would be, what can you say, what is your success mantra? What has been that one thing which has kept you motivated throughout your journey of CA? Sincerity and hard work. Okay.
See, I never thought or never believed while I was preparing for my exams, both I foundation or IPCC beat or final exams. What I realized eventually that there is nothing we can say as a tough subject or a tough topic. Only what thing was required was patience and hard work and sincerity. It's never like for other exams like engineering you might have heard कि हाँ last में एक दो दिन पढ़ के we get clear. But CA is not like that. अगर हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो हम CA कभी क्लियर नहीं कर सकते. तो आपके हिसाब से कोई शॉर्टकट नहीं होता? कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है. आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा. अगर आप हार्डवर्क और सिंसियरली डेली बेसिस पे करेंगे तो ना कभी आपके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगेगी और एट द सेम टाइम यू विल गेट थ्रू इट फॉर श्योर. ओके. तो अभी जो हमारे भिलाई में जो भी एस्पायरिंग सीएज है, नॉट ओनली सीएज, सीए कह लीजिए, सीएमए कह लीजिए, सीएस कह लीजिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो मेक इट अ रूटीन. Like for everything, what all you want to do, what all you want to achieve, you should have a plan. और उस प्लान को वो प्लान एक बिग माइलस्टोन होता है. अगर मेरे एग्जाम्स 6 महीने बाद है तो मुझे आज से प्लानिंग करनी है कि मुझे वो 6 महीने में कैसे अपना पढ़ाई कंप्लीट करनी है. तो उस प्लान को बनाने के लिए, वो बिग माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाने पड़ते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी, मुझे ये इतने टाइम पे फर्स्ट बार कंप्लीट करना है. बिकॉज एवरीबडी नोज कि सीए का करिकुलम जो है वो बहुत वास्ट है. सो इट्स नॉट लाइक नोबडी इज अ जीनियस कि एक बार पढ़ के चले गए तो उसके बाद उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी प्लानिंग प्रॉपर कीजिए. आई एम नॉट सेइंग कि हम जैसा प्लान करते हैं हम 100% वैसा ही इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर पाते हैं या फॉलो कर पाते हैं, बट एटलीस्ट वी गेट टू नो कि हमारा कैसा सिचुएशन है कुछ टाइम बाद. लाइक व्हेन यू check what all you have done, what all is pending, so you get to know your current status of your pending things to be learned or how it is. So वो चीज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि वो चीज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. दूसरी चीज़ कि जो भी तुम्हारे टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं और जो चीज़ बोलते हैं, they have experienced it since so many years. You should listen to what they are saying. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे हमेशा से याद रहती है, व्हाट आई डिड एट माय टाइम वाज, जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल होता है डेफिनेटली एवरीबडी शुड रेफर इट. वैसे तो मैंने देखा है कि चाहे हमारा एबीएस हो या कोई भी जो भी ट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो लोग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल भी कवर करते हैं, प्रैक्टिस मॉड्यूल वाला. लेकिन इंस्टीट्यूट की एक और स्टडी मटेरियल जो आता है उसमें हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं. वो सब अलग अलग टाइप के होते हैं. इफ यू विल डू दैट एंड गो, डेफिनेटली नो अदर क्वेश्चन दैट विल कम कि वो आपको एकदम डिफरेंट लगे कि आप उसे बिल्कुल भी सॉल्व ना कर सके. तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लर्न एंड गो एज फॉर मी. सो अकॉर्डिंग टू यू, जो इंस्टीट्यूट से आपको मॉड्यूल्स आते हैं, जो उनके ऑफिशियल स्टडी मॉड्यूल्स होते हैं, उनको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है. उसको प्रायोरिटी मीन्स फर्स्ट आपको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंप्लीट करना है. ऑन द टॉप ऑफ इट वो भी आपको इंस्टीट्यूट की जो भी वो आरटीपीज आती है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स, स्टडी मटेरियल, अगर आपने इतना कवर कर लिया तो इसके बाहर का, जैसे लोग कहते हैं कि पढ़ के हम कुछ और गए, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो दैट थिंग यू विल नेवर फेस इन योर लाइफ इफ यू विल कवर ऑल दिस थिंग्स. व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस्ड. So, according to you, planning is a very important step that is to be done by each and every kid today who at the beginning, who is studying. Not I would classify कि वो CA कर रहा है कि CS कर रहा है. Be it any course. हाँ, उसके curriculum में उसको planning करना जरूरी है. Yes. Planning से we can come to this point कि you can share with us कि आप जब अपने study, आपके जो days थे, studies के days थे, what was your routine? या सो लाइक आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. मुझे रात में पढ़ाई नहीं होती है. मतलब बीट माई, अगर मेरा एग्जाम भी है अगले दिन तो भी मैं रात में ज़्यादा 11-12 से ज़्यादा जग नहीं सकती. ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है. लाइक एवरीबडी हैज हिज ओन लिमिटेशन. तो मेरा ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू गेट अप एट 4 in the morning और 5 in the morning. लाइक नॉर्मल डेज में, एग्जाम डेज में तो एनीवेज यू डोंट फील लाइक स्लीपिंग, इतना प्रेशर होता है. तो morning में I used to divide my day into 2 things. We have theory, we have practical subjects.
So like morning you feel fresh, so at that time I used to read theory for 2-3 hours. In between I used to take breaks because continuously you don't feel like studying theory. और उसके बाद फिर एकदम बोर हो गए जैसे थियरी पढ़ के, देन लाइक ब्रेक ले लिया ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा बहुत ऐसा, तो उसके बाद फिर आई यूज्ड टू अगेन टेक फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और मैं ऐसा सोचती थी कि हर मतलब अगर मेरे 4 सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रुप अपीयर कर रही हूँ एंड वी हैव सीए फाइनल में 4 सब्जेक्ट्स, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरे को 4 सब्जेक्ट रोज पढ़ने हैं। मैं क्या करती थी, पहले 2 पढ़ेंगे, फिर बाद में वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे 2 पढ़ेंगे। तो 2 में एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल में सेलेक्ट करती थी और ऐसे दिन को 3-3 आवर्स के स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती थी, क्योंकि मैं कभी 12 आवर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ी और मुझसे होता भी नहीं था। इट्स लाइक यू आर सिटिंग बट नथिंग इज गोइंग इनटू हेड। तो फिर इसलिए मैं करती थी कि 3 आवर्स का मॉर्निंग, देन उसके बाद 1-2 घंटे के ब्रेक के बाद फिर 2-3 घंटे का ऐसा, फिर ऐसे करके 3-3 आवर्स का स्लॉट फिक्स करके पहले थियरी फिर प्रैक्टिकल फिर थियरी फिर प्रैक्टिकल कि टाइम के हिसाब से, बिकॉज हर किसी को अपना शेड्यूल अपनी बॉडी का पता रहता है कि मुझे कब स्लीपी फील हो रहा है तो आई कैन नॉट लर्न थियरी। सो इट डिपेंड्स आई वुड से ऑन पर्सन टू पर्सन कि उसका कैसा हैबिट है या रूटीन है, तो उसके हिसाब से। बट ये चीज मुझे लगता है कि इफेक्टिव होती है कि एनीबडी शुड नॉट लाइक थिंक ऑफ स्टडीइंग 4 सब्जेक्ट एट द सेम टाइम। डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे तो वो इफेक्टिव भी होगा और अच्छे से व्हाट यू हैव लर्नड दैट विल रिटेन इन योर माइंड। So this is a very important point, I must say, and very a point which a person should always remember is कि we should not overburdenize ourselves. Exactly. मतलब because everybody knows their own potential. Right. मतलब अगर हमको पढ़ने का मन नहीं है and हमने कहीं तो सुन लिया कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, तो we are just pushing ourselves. Exactly. अब वो effective कितना है वो तो person knows. Exactly. तो वो आपको कोई result लाके Exactly. So coming to your journey in ABS, you have spent the majority of your chartered accountancy course while you were preparing for becoming a chartered accountant. You have spent the majority of time in ABS. What are your memories with ABS and how did the faculties of ABS support you to reach your dream? Yes, so ABS played a very important part in my CA journey. I can say like while after completing my 12th exams, I was searching for a good tuition for CPT classes initially. So I got to know about this institution, and like once I joined, and I guess it was around 2 months only, because CPT में हमारे पास 2 ही महीने होते हैं और हमको पूरी तैयारी करनी होती है एग्ज़ाम की। और उस तब मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, और उसके अलावा वो लोग क्लास में जो भी मुझे पढ़ाते थे उसके ओवर एंड अबाउट दैट ऑल्सो वो लोग हमेशा अवेलेबल रहते थे हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। कोई चीज़ अगर हमें नहीं समझ में आ रही है तो मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन करते थे। तो वो चीज़ें शायद बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हम जाते हैं वो मिसिंग होती है। वो चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ हमें। और टाइम टू टाइम क्या होता था कि मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी रहती थी, स्पेशली सौरभ सर तो जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे वो हमें हमारी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते थे। तो इट वाज लाइक कि कुछ भी पाइलअप नहीं होगा, अगर हमें ये 4 चैप्टर उन्होंने पढ़ा लिए और उसकी नेक्स्ट वीक टेस्ट है तो हम उसी समय वो पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाते थे। तो हमारे लिए ऐसा नहीं हो जाता था कि लास्ट मोमेंट में बहुत सारा कोर्स पेंडिंग है कंप्लीट करने के लिए। तो वो जो मैं बड़े उस समय आपको प्रीवियसली बता रही थी बिग माइलस्टोन्स के लिए, तो ये टेस्ट सीरीज की वजह से वो बिग माइलस्टोन को अचीव करने के लिए ये छोटे छोटे जो चीज़ें हमारी एबीएस में हुई वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थी। और सौरभ सर के सपोर्ट से और भूषण सर ने भी काफ़ी अच्छा पढ़ाए थे लॉ सब्जेक्ट, बहुत ही वो क्लास में इतने अच्छे से मतलब वो सारे प्रोविजंस वगैरह हमें क्लास में याद करा लेते थे। उनकी टेक्निक इतनी अच्छी और लाइक इतने फनी वे में वो याद करा देते थे कि वो कभी हमें बर्डन ही नहीं लगा लॉ पढ़ना। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी थी और उनके ही सपोर्ट से आई गेस आई टॉप्ड, लाइक आई गॉट 166 आउट ऑफ 200 during my foundation and it was the highest in ABS. So I give my credit to both of them because उन्होंने ही बहुत अच्छे से, so because we are like baby for CA in entrance, right. We don't know anything about it, but उन लोगों ने 2 महीने की टाइम पीरियड में इतना अच्छा मुझे प्रिपेयर कराया कि मुझे कभी वो चीज़ रियलाइज ही नहीं हुई कि मैंने कितनी इजीली वो एग्जाम इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लिया। और उसके बाद फिर हमारा आईपीसीसी शुरू हुआ। अगेन मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी सीपीटी की यहाँ कोचिंग से यहाँ पे, देन देयर वाज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग
टू गो टू एनी अदर इंस्टीट्यूशन। फिर मैं वापस ABS ज्वाइन किया मैंने, और फिर ABS की हमारी क्लासेस शुरू हुई। IPCC CPT तो 2 महीने का था, बट IPCC इट वॉज अराउंड 9 मंथ्स का कोर्स, जब उन्होंने पूरा वो कराया, हमें पूरी प्रिपरेशन कराई IPCC की। और उसमें भी अगेन सेम पैटर्न वॉज फॉलोड, टाइमली टेस्ट सीरीज वॉज कंडक्टेड। इवन सर सर लोग तो ऐसा करते थे कि मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप टॉप मार्क्स लाएंगे तो यू विल, दे यूज्ड टू गिव अस सम वाउचर्स और कूपन एज एप्रिसिएशन। दैट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिलने से कुछ होगा, बट इट्स अ गुड जेस्चर फ्रॉम देयर पार्ट, सो यू फील ग्रेट अबाउट इट। एंड उस हिसाब से उन्होंने पूरी एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई। इवन सौरभ सर, मतलब उनको ऐसा था कि कुछ और भी कोई सब्जेक्ट अगर वो नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी अगर तुमको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तुमको कभी भी कोई इशू है, ही वॉज एवरी टाइम रेडी। मतलब यू आर मोस्ट वेलकम, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं, तुमको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है यहाँ। और एक बेस्ट पार्ट अभिषेक सर का कि कभी भी कितना भी टेंशन में रहो, वो इतना अच्छा मोटिवेट कर देते हैं कि तुमको कभी वो चीज़ बर्डन फील ही नहीं होती है। मतलब तुम अगर एक बार उनसे बात कर लोगे तो यू फील केयर फ्री एट दैट मोमेंट, लाइक इतना अच्छे से वो मोटिवेट कर देते हैं। तो लाइक एक्चुअली आई वुड से कि हाँ, वो तीनों सर का बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे CA बनने में, बिकॉज वो दोनों फाउंडेशन और IPCC यू कैन से वो सक्सेस के पिलर्स हो गए धीरे धीरे आगे बढ़ने के। तो वो जो चीज़ें हमको सिखाई गई या बताई गई, इवन तो हम फाइनल में वहाँ नहीं पढ़े तो भी वो चीज़ें हमें याद थी, या वो चीज़ें हमको काम आती थी हमारी प्रिपरेशन करने में फाइनल की। एंड इवन दो मतलब ऐसा था कि मैंने तो सौरभ सर को बहुत इंसिस्ट किया था, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस यू कैन से, और वैसे भी सबको पता है कि वो कितने ज़्यादा बिजी रहते, तो वो मुझे फाइनल में नहीं पढ़ा पाए थे। बट स्टिल तभी भी ही वॉज एवरी टाइम सपोर्टिव, एवर रेडी, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, ही यूज्ड टू हेल्प मी। सो सौरभ सर इवन वो सपोर्ट की वजह से बोल लो या जो भी है, इसलिए टिल डेट अभी हम 2020 में आ गए और मैं 2015 में आई क्लियर्ड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, और उसके बाद से हम आज तक टच में हैं, हम बातें करते हैं। एंड इट्स लाइक मतलब वो एज अ ग्रैटिट्यूड यू कैन से, और कुछ भी हो, मैं सर को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती, बिकॉज इतना इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है मेरे CA बनने में। सो इसलिए इस बार भी सर ने मुझे बुलाया तो मैंने उनको एक बार में बोल दिया कि यस, इवन आई वुड वांट टू मीट यू, एंड आई केम फॉर माय इंटरव्यू। ओके, सो इट इज वेरी राइटली सेड दैट आप अगर एक जर्नी में हो, अगर आपने एक ड्रीम प्लान किया हुआ है और आप उसको अगर करना चाह रहे हो, पूरा करना चाह रहे हो, तो यू वुड नीड अ मेंटर। एक ब्लेसिंग हैंड चाहिए, मतलब मदर फादर फैमिली इज ऑलवेज देयर, बट उनके अलावा भी यू विल ऑलवेज नीड अ मेंटर। सो डू यू वांट टू से कि ABS में ही आपको वो मेंटर्स मिले who have blessed you? डेफिनेटली, नो डाउट इन दैट। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे कोई दिक्कत रहे तो मैं सौरभ सर से तो डिस्कस कर सकती हूँ, एंड डेफिनेटली हिज गाइडेंस विल सपोर्ट मी एट एनी पॉइंट इन माय लाइफ। इतना आई कंसिडर इट कि हाँ, डेफिनेटली वो लोग जो बोलेंगे दैट वर्क्स एंड दैट विल हेल्प मी डेफिनेटली फॉर श्योर। Right, every child needs to select a mentor for himself, and you selected CA Saurabh Goyal for that, and CA Bhushan Chipde and Abhishek Rai sir. Definitely. So always एक helping hand चाहिए ही होता है हम सबको, other than our family, and वो helping hand हमको खुद को ढूंढना होता है, and once you get it, then तो फिर आपकी journey is like सक्सेसफुल। आपको एक बार वो इंसान मिल जाए ब्लेस करने के लिए, फिर आपकी जर्नी ऑलरेडी इजी हो जाती है। ओके, सो CA अनमोल, अभी अच्छा लगता होगा सुन के, आपको अच्छा लगता है CA हो जाता है। सो आई लाइक टू आस्क यू वन थिंग कि अभी जो सिनेरियो है कि कोरोना वायरस हैज अफेक्टेड द होल वर्ल्ड सो बैडली, एवरीबडी, डायरेक्टली बोलिए इंडायरेक्टली बोलिए, एवरीबडी इज हिट बाय इट। तो बच्चे स्पेशली, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री हैज सफर्ड अ लॉट, एंड अभी के टाइम पे बच्चों का मेंटालिटी हैज गॉन लाइक क्या करें क्या नहीं करें, उनका मोरल काफी डाउन हो गया है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि मोरल डाउन होने वाली कोई चीज़ नहीं है। मुझे तो लगता है इनफैक्ट इट्स अ लाइक बून थिंग फॉर
एटलीस्ट स्टूडेंट्स, बाकी लोगों के लिए जिनके काम रुक गए हैं, जिनकी चीजें प्रॉब्लम्स है, सॉर्ट नहीं हो रही है, बट फॉर स्टूडेंट्स इट्स लाइक नो अदर डिस्ट्रैक्शन, नथिंग इन लाइफ, यू आर स्टेइंग बैक एट होम, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, योर पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ यू, ठीक है। तो उस केस में तो आई गेस इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। यूजुअली क्या होता है, हम नॉर्मल सिनेरियो में देखेंगे अगर विदाउट कोरोना, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें वो शायद इंपॉर्टेंट नहीं भी होती है, बट वी गिव इम्पोर्टेंस टू इट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट अभी ऐसा हो गया है कि एवरीबडी इज एट होम, nobody is going out without any genuine or specific reason. So हाँ, एक चैलेंज आई अंडरस्टैंड दे माइट बी फेसिंग कि उनको जो यहाँ पे हमारे भिलाई में हमको लाइव क्लासेस अटेंड करने का वो मौका मिलता है, वो लोग वो मिस करते होंगे, बट अगेन दैट इज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज आई वुड से, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी टीचर इतने साल से पढ़ा रहा है तो उसको इतना एक्सपीरियंस है, एंड आई एम श्योर हमारे एबीएस के जितने भी टीचर्स होंगे उनको ये पता है कि कैसे वीडियोस हम उस तरीके से रिकॉर्ड कर सकें ताकि वो चीजें बहुत हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और लोगों को डाउट कम से कम हो। फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल, आई हैव नेवर सीन any teacher say in ABS saying no for any doubt, even if you are asking multiple times, and they are available 24/7 if you have any problem in your syllabus or course anything. So I would say कि वो चीज उनके लिए सिर्फ इस लेवल पे if they are facing any issue, तो yes they should consult with them, they should ask doubts, if they feel like no it's not possible to discuss over call, they should come. I think सर लोग कभी मना नहीं करेंगे कि आप यहाँ आके डाउट पूछिए। और बाकी ऐसा है कि जैसे ही हमारे एग्जाम्स कब रहते हैं, क्या रहता है, वो प्लानिंग जो रहती है वो हमको पहले से पता होती है और एडवांस में करनी होती है। बाकी सिनेरियो में जैसे आईसीएआई की कुछ गाइडलाइंस आई हुई है, उस वजह से पीपल आर नॉट श्योर क्या होगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आज नहीं तो कल तो एग्जाम होगा, एंड अभी अगर आप प्रिपेयर करके रखोगे तो आपके लिए बाद में चीजें थोड़ी कम हेक्टिक और प्रेशराइज कम फील करेंगे आप। वो चीजें जो शायद बाद में आप एकदम स्ट्रेस लेके और आपका मेंटल बैलेंस लूज करे, उससे अच्छा आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत इजीली और शांति से स्टेबल होके अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई गेस इट्स अ ब्लेसिंग फॉर स्टूडेंट, राइट, कोरोना वी कैन से, उनके लिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। Right. So do you agree with me on this fact that online is the new normal? Yes, it is. I mean, students have to adapt it. Definitely, because अगर वो लोग नहीं करेंगे तो it's a loss for them. Yeah. Right. Everybody is adopting the new normal like the way we are living because of corona, and we can't help it. तो अगर वो लोग नहीं करेंगे तो it's a loss for them completely, because वो चीज कोई भी चेंज तुम जितना जल्दी अडेप्ट होगे तुम उतना जल्दी आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। अगर तुम वही चीज को लेके क्रिप करोगे तो देन यू आर ओनली गिविंग एन एक्सक्यूज। So it is written everywhere that change is the only constant which is change. Yes. Change is always a constant. Similarly, online is the new normal, is something which every student currently should stick to. So this was CA Anmol Bhagwani. She has given some words of wisdom for the students currently pursuing education for any field, maybe any field, maybe science, maybe commerce, specifically as a CA. So I think you have had a great time with us. We have had a great time with you, and thank you for joining us and enlightening our students with your words. Anytime for ABS. Thank you.